برطانوی سیاست میں ہلچل، وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان، آپ دیدہ ہو گئے۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر نیوز کانفرنس میں کہا کہ پارٹی کی خواہش پر پارٹی کی لیڈرشپ سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ عوام کی فلاح و بہبود میری ترجیح رہی۔ 2 سال میں معیشت کو مضبوط کیا، ملک کے لیے کام کیا، بچوں کو سوشل میڈیا کے برے اثرات سے بچانے کی کوشش کی۔ تبدیلیاں راتوں رات نہیں آتی، اقتدار کی منتقلی تک وزیر اعظم رہوں گا اور فرائض انجام دوں گا۔ نئے وزیر اعظم کے لیے اینڈی برنہم مضبوط امیدوار۔ عالمی امن کے قیام میں پاکستان کی بڑی کامیابی، ایران امریکہ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور، مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام پر اتفاق، آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت اور تنازعات سے بچنے کے لیے رابطہ لائن قائم، ایران امریکہ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری، پاکستان اور قطر کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق تکنیکی مذاکرات کے لیے ایک طریقہ کار تشکیل دیا جائے گا، جوہری امور، پابندیوں، نگرانی اور تنازعات کے حل پر ورکنگ گروپس تشکیل دینے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن کے فروغ کے لیے مخلصانہ کردار جاری رکھے گا۔ اگلے 60 دن کے اندر حتمی معاہدے کے روڈ میپ پر اتفاق کر لیا گیا۔ تاریخی عمل کو آگے بڑھانے پر قطر، سوئٹزرلینڈ اور دوست ممالک کے تعاون کا شکریہ۔ فیلڈ مارشل کی انتک کوششوں کے بغیر مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی کل 1 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات سمیت خطے کی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ریڈ زون میں ایرانی صدر کے دورے کے حوالے سے تیاریاں جاری، دونوں ممالک کے جھنڈے لگا دیے گئے۔ پاکستان کی تاریخی ثالثی کام دکھا گئی، ایران کے تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر پابندیاں اور ناکہ بندی ختم، ایران کے بعض منجمد اثاثے جاری۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا پاکستان اور قطر کی ثالثی کی کوششوں سے لبنان جنگ کے خاتمے میں پیش رفت ہوئی، ایران کے لیے ایک بڑے تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ لبنان میں جنگی کارروائیوں کے خاتمے کے لیے خصوصی سیل قائم کرنے پر اتفاق۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ مفاہمتی یادداشت پر مؤثر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپس فعال رہیں گے۔ ثالث ممالک کا مذاکرات کو تعمیری ماحول میں آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ثالث ممالک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔ فریقین کا رابطوں اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل پر زور۔ فریق اور ثالث مذاکرات کے طریقہ کار سے مطمئن ہیں۔ مذاکرات میں شریک امریکی عہدیدار کا دعویٰ، کہا 18 گھنٹے مذاکرات میں جوہری معاہدے، آبنائے ہرمز کی صورتحال، لبنان میں جنگ بندی اور خطے کی سلامتی سمیت اہم امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ثالث معاملات حل کرنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا ابتدائی دور اعتماد سازی کے لیے مضبوط بنیاد دے گا۔ تکنیکی ٹیمیں مزید مذاکرات کے لیے پورا ہفتہ سوئٹزرلینڈ میں موجود رہیں گی۔ الحمدللہ ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی کامیابی ہوئی، فیلڈ مارشل کا اعلان۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ آپ کو مبارکباد ہو۔ ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی ڈرافٹ کی تیاری کے تمام مراحل میں شریک رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک ٹائمز کی خبر پر برس پڑے۔ ایران جنگ کے بعد ایران میں بڑی تبدیلی نہ لانے کا نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ غلط ہے۔ ایران کی فوج بحریہ اور فضائیہ ختم ہو چکی ہے، آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے اور تیل کی ترسیل جاری ہے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ سطح پر ہے۔ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ تعلقات کا نیا دور شروع کرنے کا حکم دیا۔ مذاکرات کے ذریعے مشرق وسطی میں استحکام ممکن ہے۔ امن کے لیے ایران کے مثبت کردار کے خواہاں ہیں۔ لبنان کی صورتحال پر تشویش ہے۔ امریکی صدر لبنان میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔
वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि वफाक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सूबों की हिमायत के बगैर नहीं जीत सकता। दहशतगर्दी के 95% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए। सिक्योरिटी पर इजलास हो तो खैबर पख्तूनख्वा को शिरकत करनी चाहिए। वफाक हर तरह की मदद के लिए तैयार है। जो वसाइल चाहिए वफाक देगा। मुल्क में अमन होगा तो ही खुशहाली आएगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट ने 9 मुंतखब अराकीन से हलफ लिया। पीपल्स पार्टी के 13, नून लीग के 9 अराकीन हलफ उठाने वालों में शामिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 और MWM के 1 रुकन ने भी हलफ उठाया। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सबको अनाज से बाहर निकल कर कुछ करना होगा। सियासी इंतकाम का तवील सिलसिला हमेशा के लिए रुक जाना चाहिए। हम खुद साख्ता मुकदमात पर सजाओं के खिलाफ हैं। महमूद चिकजई ने मुल्की मफाद में खुद ऐवान में वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया। हमारी सोच थी कि हाथ मिलाने से सियासी मामलात बेहतर होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को सजाएं अदालत ने आईन और कानून के मुताबिक सुनाई। हुकूमत का कोई किरदार नहीं। PTI पार्लियामेंट से बाहर रहने के बजाय कमेटियों में मुस्बत किरदार अदा करे। हुकूमत से नाराज होकर बैठ जाना और सरकारी मराहत भी लेते रहना कानून की हुक्मरानी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि आलमी सतह पर इस वक्त हर तरफ पाकिस्तान का चर्चा है। नामुमकिन काम को पाकिस्तान की मुखलिस क़यादत ने मुमकिन कर दिखाया। अवाम ने हिम्मत के साथ मौशी मुश्किलात का मुकाबला किया। अपोजिशन का रोना धोना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अपोजिशन लीडर की तकरीर एक शख्स को खुश करने के लिए होती है। पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि निजी मलकियत शहरियों का बुनियादी आईनी हक है। इस पर असरअंदाज होने वाले कोई भी शिक कबूल नहीं की। कौमी असम्बली से आने वाले IT बिल में मुतनाज़ शिकें बरकरार थीं। हम फाइबराइजेशन के खिलाफ नहीं, लेकिन निजी मलकियत और राइट ऑफ वे पर समझौता कबूल नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक बिल की मंजूरी नहीं दी जाएगी। बिजली बचाओ, सोलर लगाओ। अब सोलर पर भी ड्यूटी। पंजाब में सोलर और निजी जनरेटर्स पर नई ड्यूटी की तजवीज़। सनती और कमर्शियल सारिफिन पर 4 पैसा फी यूनिट ड्यूटी आयद की जाएगी। 500 kVA से जायद जनरेटर्स और सोलर सिस्टम्स भी ड्यूटी नेट में लाने की मंजूरी। इससे पहले वफाकी हुकूमत नेट मीटरिंग को ख़त्म करके नेट बिलिंग नाफिज कर चुकी है। टैक्स तजवीज़ को सारिफिन ने मुस्तरद कर दिया। PIA की नई मालिकान को हवालगी की राह हमवार। ऑपरेटिंग हुकूक की मुंतकिली समेत तमाम रेगुलेटरी तकाज़े मुकम्मल। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि PIA रवा माह के अख्तिताम से कबल बाज़ाब्ता तौर पर अपने नए मालिकान के हवाले कर दी जाएगी। 15 साल के लिए जहाज़ों की खरीद, लीज, आलात और पुर्जाजात पर टैक्स छूट की मंजूरी IMF से हासिल कर ली गई। सहूलत को फाइनेंस बिल में भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का मोबाइल फोन्स पर भारी टैक्सों और आवाम को रिलीफ ना मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा टैक्सों की अदायगी के लिए एक साथ का निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। FBR और PTA को मुश्तरका तौर पर प्लान तैयार करके पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। फतह जंग, तेलागंग, कलरकहार, चकवाल, जहलम में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पेशावर, सवाबी, हरीपुर, अटक, मर्दान और पाराचिनार में बारिश का इम्कान। दीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान और मालाकंड में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। NDMA का मुल्क भर में बारिशों, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर और KP के पहाड़ी इलाकों के लिए खुसूसी अलर्ट जारी। ग्लेशियर, झीलों के फटने, अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मलबे के रेलों का खतरा मौजूद है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सहर प्रोग्राम का आगाज़। 5000 से ज़ायद ख़वातीन को घर बैठे वोकेशनल तरबियत दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि औरत माशी तौर पर मजबूत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। पंजाब की ख़वातीन को काबिल कदर असासा बना रहे हैं। सहर प्रोग्राम के इजरा का मकसद ख़वातीन को तरक्की के मौक़े फराहम करना है। वोकेशनल स्किल प्रोग्राम की खातिर खा नताइज सामने आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध पर 18 साल से पीपल्स पार्टी का कब्जा है। अंदरूनी सिंध में बच्चों को तालीम और सेहत क्यों नहीं मिल रही? पीपल्स पार्टी को सिंध में फ्रेंडली अपोजिशन मिली है। कराची पर जुल्म का हिसाब कौन लेगा? मौजूदा बजट में आवाम के लिए कोई नई चीज नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी को फौरी खत्म किया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि मेयर कराची की कारकर्दगी ने जमात इस्लामी की नींदें हराम कर दी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमली इक़दामात और अवामी खिदमत की सियासत की। वर्ल्ड बैंक को 21 लाख घर नजर आए मगर इन्हें नजर नहीं आए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में हज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट की मियाद कम अज़ कम 26 नवंबर 2027 तक होना लाजमी। एक खानदान के अफराद मुश्तरका तौर पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आज़मीन घर बैठे ऑनलाइन या मुकर्ररा बैंक्स के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बैरून मुल्क क़याम तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,78,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड $79 फी बैरल की सतह पर। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल की सतह पर आ गया। लेबनानी सदर का अमरीकी नायब सदर, कतरी वजीर आज़म और अमरीकी खुसूसी एलची से टेलीफोनिक राब्ता। रॉयटर्स के मुताबिक जंगबंदी बरकरार रखने और इसराइली फौजी कशीदगी को रोकने के मामले पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वक्त हमारे हक में है। ईरान को समझना होगा कि वो जौहरी हथियार या बम हासिल नहीं कर सकता। फरीकैन को मुकम्मल एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने बर्गनस्टॉक में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात की इफ्तिताही तकरीब की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमन के लिए पाकिस्तान का हैशटैग दिया। सुबह से लेकर अब तक जिसमें बायलैटरल भी अगर मुलाकातें हुई हैं तो उसमें बड़े अच्छे माहौल के अंदर हुए सब कुछ हुआ है। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हम न्यूज़ पर लम्हा बलम्हा कवरेज। हम न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान तारीखी मकाम पर मौजूद। मुज़ाकरात के वेन्यू से बराह रास्त कवरेज। कराची, सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध भर में आशूरा पर 25 और 26 जून को आम तातील होगी। हुकूमत सिंध ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फी तोला सोना 4,643 रुपये महंगा। नई कीमत 4,42,636 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,78,345 रुपये का हो गया। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में मिस्र की पहली फतह। न्यूजीलैंड को 3-1 से हरा दिया। मिस्र के मोहम्मद सलाह ने एक गोल दागा। यूरुग्वे भी केप वर्दे को ना हरा सका। फीफा वर्ल्ड कप का मैच 2-2 गोल से बराबर। ईरान और बेल्जियम का मैच बराबर। दोनों टीम्स मुकर्ररा वक्त में कोई गोल ना कर सकें। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल टीम की कारकर्दगी को मुल्की दिफा के आज़म से जोड़ दिया।
ایرانی ٹیم کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اسی طرح ہم اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہیں۔ لاہور چڑیا گھر میں 2 نایاب نسل کے ہرنوں کے بچوں کی پیدائش۔ نیالا ہرن کے ایک اور نارتھ افریقی جانور اورکس نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ بہاولپور کے چڑیا گھر میں افریقی شیرنی کے 3 بچوں کی پیدائش۔ سرسبز بلند و بالا پہاڑ، جھیل اور دل کو چھو جانے والے مناظر۔ سوات کا سیاحتی مقام شاہی باغ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ۔ سیاحوں کی بڑی تعداد، سہانے موسم اور